happy. So today we are going to begin with the lesson number 6, that is working with Flash. So let's begin. In this chapter we are going to study about the introduction, then what is Flash, then we are going to study about opening Flash, how to open the Flash, then areas of Flash workspace, and how to create an object in Flash and gradient. Then we are going to study about animation method, and lastly twinning, that is motion twinning, shape twinning and tint twin. So let's begin with the introduction part. Nowadays you can see different animation characters. आजकल आपको देखने को मिलते हैं different animation characters, animated movies देखने को मिलते हैं, animation movies, video games and many other mobile applications. These all are made possible with the help of Flash. किसकी वजह से possible हो पाया है? Flash की help से. Flash is a great tool for creating mobile apps and animation. ये क्या एकदम great tool है create करने के लिए mobile apps को and animations को. Flash is a multimedia software platform. ये क्या है? आपका multimedia software platform है that helps to create animation, जो आपको help करता है create करने में animations को, rich internet applications को, desktop application, mobile applications and mobile games. It is a fast, efficient and very useful tool. ये बहुत ज़्यादा fast, efficient और बहुत ज़्यादा useful tool है that has been used in many other mobile apps. जो किसमें यूज होता है? बहुत सारे मोबाइल एप्स में यूज होता है एंड गेम्स में. It is a computer animation software developed by Macromedia. ये आपका क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, जो किसने डेवलप करा था? मैक्रोमीडिया ने डेवलप करा था. इट इज यूज्ड टू मेक मूवीज, वेबसाइट्स, गेम्स एक्सेट्रा. किसमें यूज होता है? मूवीज बनाने के लिए, वेबसाइट्स में, गेम्स बनाने में. यू कैन यूज फ्लैश टू इन क्रिएट एनिमेटेड कैरेक्टर्स को क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं. क्रिएट गेम्स क्रिएट करने के लिए. क्रिएट एनिमेटेड एडवर्टाइजमेंट्स, आप एनिमेटेड एडवर्टाइजमेंट्स बना सकते हो, वेबसाइट्स को बिल्ड कर सकते हो. बिल्ड योर ओन एप्लीकेशंस लाइक अ डिजिटल क्लॉक. आप अपना एक एप्लीकेशन बना सकते हो एक डिजिटल क्लॉक की तरह. Adobe Flash was formerly called Shockwave Flash. इसको क्या कहते थे? Formerly Shockwave Flash कहते थे. Now how to open Flash? कि Flash को कैसे ओपन करते हैं? To open Macromedia Flash, follow the given step. First आपको स्टार्ट स्क्रीन पे जाना है, फिर आपको क्लिक करना है Macromedia Flash टाइल पे. जो टाइल अवेलेबल होती है, a screen will open as shown on the next page. एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी. Here is the no point. The Flash CH-6 version features offer designers a way to add intuitive interactivity and expression to content. ये क्या करता है? डिजाइनर कोई वे ऑफर करता है ऐड करने के लिए. इंट्यूटिव इंटरएक्टिविटी हो गई. एंड आपकी ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें क्या होता है? दिस इज द मेन्यूज, दिस इज द लेयर्स, दिस इज द टाइमलाइन, this is the panel set, this is your stage and this is your toolbox and this is your properties inspector. Now areas of the Flash workspace. Let's read about first timeline. It is a grid showing each frame of the Flash movie. क्या grid होती है जो शो करती है आपको किसकी? Each frame Flash movies के. This window allows you to control your movies और एनिमेशन. ये विंडो क्या करती है? आपको अलाउ करती है कंट्रोल करने के लिए आपकी एनिमेशन को, मूवी को. एंड द टाइमिंग दैट स्पेसिफाइज व्हेन एलिमेंट इज अ मूवी अपीयर्स ऑन द स्टेज. इट आल्सो हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग द स्टेज कंटेंट. ये आपको हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में स्टेज कंटेंट को. द नंबर्स अलोंग द टॉप ऑफ अ टाइमलाइन refers to numbers of frames in your movie. The frames are little rectangular cells. Frames क्या? Little rectangular cells है और fragments of time in your movie. The playhead begins at frame. कहाँ पे playhead begin करता है? फ्रेम पे, फ्रेम 1 पे and move from left to right. कहाँ से मूव करता है? लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है जैसे जैसे मूवी प्रोसीड करती है through the frames. Playhead indicates the current frame. Playhead क्या इंडिकेट करता है? करंट फ्रेम इंडिकेट करता है that is displayed on the stage. जो कहाँ displayed है? आपके स्टेज पे. The timeline allows you to create and edit animation. Timeline क्या करती है? आपको allow करती है edit करने के लिए, create करने के लिए animations को. That is to move forward and backward in a time. जो क्या करती है? move करने में forward या फिर backward एक time में. The length of the movie is controlled by the number of keyframes. जो length होती है आपकी मूवी की किससे कंट्रोल होती है? Number of keyframes से and frames created in timeline. Keyframes are the frames with specific contents. Keyframes क्या है? Frames है किसके साथ? एक specific contents के साथ जो create होते हैं insert करने के लिए and in existence content into the movie. It is a frame where a change occurs in the timeline. ये एक ऐसा frame है जहाँ पे कोई भी आप change occur होता है आपकी timeline में. It is indicated on the timeline with a solid black dot. ये आपकी timeline में कैसे indicate होता है? Solid black dot या फिर circle की तरह indicate होता है.
Now let's talk about layers. These are fundamental building blocks for your movie. आपकी क्या होती है? Fundamental building blocks होती है आपकी मूवी के लिए, which helps you to organize the artwork and animation, जो आपको allow करती है organize करने में आपके artwork को, animations को in a document. They are stacked vertically. कैसे stacked होते हैं? Vertically stacked होते हैं, one on top of each other, एक दूसरे के top पे, like sheets of paper. Elements can be separated into layers to keep them distinct. Separate हो सकता है layers को रखने के लिए, distinct करने के लिए. This is essential if you want to animate them. ये essential किस लिए होता है? जब आप इनको animate करना चाहते हो तो. The stage. It is the area on which you position all the content of your movie. एक area होता है जो आपको position करता है सारा content आपकी movie का. It is like the canvas that allows you to organize graphics. किसकी तरह होता है? Canvas की तरह होता है जो आपको अलाउ करता है ऑर्गेनाइज करने में ग्राफिक्स को एंड इमेजेस को दैट यू वांट टू इंक्लूड इन अ मूवी. दिस इज वेयर यू क्रिएट एंड व्यू योर डिजाइन वर्क. ये एरिया होता है जो क्रिएट करता है, व्यू करता है डिजाइन वर्क को. द साइज ऑफ स्टेज डिफाइंस द साइज ऑफ योर फाइनल फ्लैश. जो साइज होता है आपके स्टेज को डिफाइन करता है, साइज किसके? फाइनल फ्लैश का, मूवी का. When you play the flash file, the program will show everything. जब आप फ्लैश फाइल प्ले करते हो, प्रोग्राम क्या शो करेगा? हर चीज शो करता है आपकी स्टेज पे. If you place objects outside the boundaries, अगर आप प्लेस करते हो ऑब्जेक्ट इस पे outside the boundaries of the stage, they will be visible while working in program. कब visible होते हैं? जब आप प्रोग्राम में वर्क कर रहे होते हो, but not during playback. Scene on the stage changes when objects or animation moves off. जो scene होता है आपके ऑब्जेक्ट का, वो कैसे चेंज होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है या फिर कोई एनिमेशन मूव करती है ऑफ द स्टेज टू बी रिप्लेस बाय न्यू वंस. और किससे रिप्लेस होता है? वो न्यू वन से रिप्लेस हो जाते हैं. नाउ टूल बॉक्स. ऑल द टूल्स दैट यू नीड टू क्रिएट अ ग्राफिक्स आर लोकेटेड ऑन द टूल बॉक्स. सारे टूल्स जो आपको चाहिए होते हैं ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए, कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? टूल बॉक्स पे. इट कंटेन्स द टूल्स यूज्ड टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स. इसमें क्या क्या होता है? टूल्स होते हैं जो सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं ऑब्जेक्ट्स को ऑन द स्टेज. क्रिएट टेक्स्ट एलिमेंट एंड ड्रॉ वेक्टर ग्राफिक्स. क्या कहते हैं? क्रिएट करते हैं टेक्स्ट एलिमेंट्स को और ड्रॉ करते हैं क्या? वेक्टर ग्राफिक्स को. सो दिस इज द टूल बॉक्स. ये कहाँ पे अवेलेबल होता है? लेफ्ट साइड में. प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर. सो इट डिस्प्लेस कॉन्टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द एट्रीब्यूट ऑफ एनी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट. क्या डिस्प्ले करता है? कॉन्टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है किसी एट्रीब्यूट के से रिलेटेड, कोई भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड. एंड यू कैन एडिट दीज ऑप्शंस. आप एडिट कर सकते हो इन ऑप्शंस को एडजस्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट सेटिंग्स लाइक चेंजिंग द साइज. This is context sensitive and changes according to which part of the interface is selected. क्या है? context sensitive है, change करता है किसके according? जिसके according to which part of the interface is selected. Now panel. These are the additional windows allowing you to control and manipulate your design elements. ये क्या है? additional windows होती है जो अलाउ करती है आपको कंट्रोल करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए आपका डिजाइन को, एलिमेंट्स को, as well as adding interactivity. You can unlock and move the panels to other case of the workspace to suit your preferences. आप unlock कर सकते हो, move कर सकते हो panels को किसी भी other area of workspace area में अपनी preferences के accordingly. These are accessed through the window menus. किसके through access होता है? ये window menus के through access होते हैं. Workspace. The gray part area of the edge of the stage that will not be seen in the final movie is called workspace. जो gray part होता है जो फाइनल मूवी में आपको नहीं दिखेगा उसको हम वर्क स्पेस कहते हैं. इट कैन बी शोन और हिडन बाय चूजिंग व्यू वर्क एरिया. इसको आप कैसे शो करता है, कैसे हाइड कर सकते हो? व्यू पे जाके, वर्क एरिया पे जाके. देन मेन्यूज. सो दिस इज द मेन्यूज. Just as in any other software program, you can access different parts of software by choosing from the menus. आप different parts होते हैं आपके सॉफ्टवेयर के, खुद से एक्सेस कर सकते हो, अपने menus को चूज करके एक्सेस कर सकते हो अपनी स्क्रीन पे. In the same way, the menus in Flash is aimed to make it easier to access. Flash में क्या क्या एम होता है menus का? बोला easily आप उनको एक्सेस कर पाओ डिफरेंट प्रोग्राम फीचर्स को. The menu bar is shown below. ये क्या है? आपका मेन्यू बार इस तरीके का होता है. In the early 2000s, Flash was widely installed on desktop computers. कहाँ पे सबसे ज्यादा इंस्टॉल होता था? आपकी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल होता था. एंड कॉमनली किसके लिए यूज होता है? डिस्प्ले करने के लिए इंटरैक्टिव वेब पेजेस को, ऑनलाइन गेम्स एंड टू प्ले बैक वीडियोस एंड ऑडियो कंटेंट. Now creating an object. कैसे क्रिएट करते हैं एक ऑब्जेक्ट को? You can draw freehand shapes like a tree. आप freehand shapes ड्रॉ कर सकते हैं एक ट्री की तरह. किसकी हेल्प से? पेंसिल टूल की हेल्प से. To draw a tree, first create the tree trunk. ट्री को ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले ट्री ट्रंक ड्रॉ करनी होती है.
then a tree top and finally join the both to make a tree. फिर उन दोनों को join कर दो एक tree बनाने के लिए. To create the tree trunk कैसे create होता है? From the menu bar choose view. आपको कहाँ जाना है? पहले view में जाना है, then grid में, then edit grid में. After that deselect करना है आपको snap to grid. Then you have to click on OK. Choose the pencil tool as shown here. आपको pencil tool को choose करना होगा. In 2005, YouTube was founded by former PayPal employees. 2005 में आया था YouTube. किसने फाउंड किया था? PayPal employees ने. As it used flash players. वो क्या यूज करता था? Flash players को as a means to display compressed video content on the web. इसलिए means क्या means होता है? Display करने के लिए content video को, compressed video को web पे. स्टेप 5 क्लिक. उसके बाद आपको क्या करना है? क्लिक करना है. क्लिक द स्ट्रोक कलर बॉक्स. आपको स्ट्रोक कलर बॉक्स को क्लिक करना है एंड चूज ब्राउन एज द स्ट्रोक कलर. और ब्राउन को चूज करना है स्ट्रोक कलर के लिए फॉर कलरिंग द स्टेम. यू हैड चूजन ब्राउन एज द स्ट्रोक कलर. आपने क्या चूज करा? ब्राउन को चूज करा स्ट्रोक कलर की तरह बिकॉज द स्टेम इज ऑफ ब्राउन कलर. क्योंकि स्टेम क्या है आपका? ब्राउन कलर का होता है. क्लिक द फिल कलर. आपको किस पे क्लिक करना है? फिल कलर पे क्लिक करना है एंड चूज करना है ब्राउन इन द फिल कलर. आपको वहां पे फिल कलर में ब्राउन चूज करना है. ऑन द मॉडिफायर पैनल इफ ऑब्जेक्ट ड्राइंग इज सिलेक्टेड. आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग सिलेक्ट होता है उसको फिर आपको डीसिलेक्ट करना है. स्टेप 8 टू राउंड द कॉर्नर्स. अगर आपको कॉर्नर्स राउंड करने अपनी ड्राइंग के आपको क्लिक करना होता है मॉडिफायर पे, मॉडिफायर पैनल पे. देन चूज द स्मूथ ऑप्शंस एज शोन हियर. फिर आपको स्मूथ ऑप्शंस को चूज करना है. ड्रॉ द ट्री ट्रंक. फिर आपको क्या ड्रॉ करनी है? ट्री ट्रंक ड्रॉ करनी है. यू शुड take care that the starting point and the ending points are connected. आपको take care करना है कि जो starting point है और जो ending point है वो connected होने चाहिए. The precursor to Flash was product named Smart Sketch published by Future Wave Software. किसने publish करा था? Future Wave Software ने publish करा था. Choose the paint bucket tool. आपको क्या करना है? Step 10 में आपको choose करना है paint bucket tool from here to fill enclosed areas. Enclosed area को fill करने के लिए कलर से. क्लिक इनसाइड द ट्रंक. आपको ट्रंक के अंदर क्लिक करना है तो आपको जो ट्रंक होगी वो फिल हो जाएगी ब्राउन कलर से. इफ योर ट्री ट्रंक हैज गैप्स. अगर आपकी ट्री ट्रंक में गैप्स है देन क्लोज द गैप्स. फिर आपको क्लोज करने होते हैं गैप्स. क्लिक ऑन गैप साइज मॉडिफायर. आपको किस पे क्लिक करना होता है? गैप साइज मॉडिफायर पे क्लिक करना होता है एंड चूज करना होता है क्लोज लार्ज गैप्स को. किसको चूज करना है? आपको क्लोज लार्ज गैप को चूज करना है. इन नवंबर 1996 फ्यूचर स्प्लैश वाज एक्वायर्ड बाय मैक्रोमीडिया. किसने एक्वायर कर लिया था? उसको मैक्रोमीडिया ने एक्वायर कर लिया था. मैक्रोमीडिया रीब्रांडेड एज ब्लीच फ्यूचर स्प्लैश एनिमेटर्स एज मैक्रोमीडिया फ्लैश 1.0. कैसे रिलीज हुआ था? मैक्रोमीडिया फ्लैश 1.0 की तरह रिलीज हुआ था ये. फिर स्टेप्स टू क्रिएट द ट्री टॉप. ट्री के टॉप को कैसे बनाते हैं? क्या क्या स्टेप्स होते हैं? चूज द पेंसिल टूल. पहले आपको पेंसिल टूल को चूज करना है. देन ही स्टेप 2 आपको क्लिक करना है स्ट्रोक कलर बॉक्स पे एंड चूज करना है ग्रीन एज द स्ट्रोक कलर टू मेक द ट्री टॉप. देन यू हैव टू क्लिक द फिल कलर बॉक्स. फिर आपको किस पे क्लिक करना है? फिल कलर बॉक्स पे चूज करना है एंड चूज ग्रीन एज फिल कलर. ग्रीन को फिल कलर की तरह चूज करना है. फिर आपको ट्री ड्रॉ करना है. ट्री टॉप एज शोन ऐसे आपको ट्री टॉप ड्रॉ करना है पेंसिल से. देन आपको चूज करना है पेंट बकेट टूल को. देन आफ्टर दैट क्लिक इनसाइड द ट्री टॉप. फिर आपको ट्री टॉप के अंदर इनसाइड क्लिक करना है. फिर फिल द ट्री टॉप विद कलर्स. फिर आपको ट्री टॉप को कलर से फिल कर देना है. In 2014, Adobe Air reached a milestone when over 1 lakh unique applications were built on Air and over 1 million installations of the same were logged from users across the world. May 2000 कब हुआ था ये? May 2014 में. So steps to create the tree. Steps क्या होता है ट्री को create करने के? Choose the selection tool. आपको selection tool को फिर से choose करना है. Then आपको डबल क्लिक करना है ट्री टॉप पे टू चूज द ट्री टॉप. फिर आपको डबल क्लिक कर देना है ट्री टॉप पे उसको चूज करने के लिए. आफ्टर दैट ड्रैग द ट्री टॉप ओवर द ट्री ट्रंक टू कंप्लीट द एरिया. आपको ड्रैग करना है ट्री टॉप को ट्रंक एरिया के ऊपर. देन फाइनली योर ट्री इज रेडी एंड इट इज शोन बिलो. आपका ट्री रेडी है like this. In 2005 Macromedia was acquired by Adobe Systems. 2005 में Macromedia को किसने acquire कर लिया था? Adobe Systems ने acquire कर लिया था. Now let's talk about gradient. So a gradient is an area of a graphic or multicolor fill. ये क्या एक एरिया होता है ग्राफिक्स का multicolor fill का in which one color gradually changes. जो आपका एक कलर होता है दूसरे में चेंज हो जाता है.
अनदर कलर में इट स्मूथ कलर ग्रेडेशंस, ये क्या करता है, स्मूथ करता है कलर ग्रेडेशंस को across one or more objects. Flash can create two main types of gradients. दो मेन टाइप्स के ग्रेडियंट्स को क्रिएट करता है, लीनियर एंड रेडिकल. लीनियर ग्रेडियंट्स चेंज कलर, ये क्या करता है, चेंज करता है कलर अलोंग अ सिंगल एक्सिस, किसके एक्सिस, सिंगल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल. रेडिकल ग्रेडियंट चेंजेस कलर इन एन आउटवर्ड डायरेक्शन. जो ग्रेडियंट होता है, रेडिकल ग्रेडियंट चेंज करता है कलर किसमें, आउटवर्ड डायरेक्शंस में, स्टार्टिंग फ्रॉम अ फोकल पॉइंट. यू कैन एडजस्ट और चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट. आप एडजस्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो डायरेक्शन आपके ग्रेडियंट की, इट्स कलर्स, द लोकेशन ऑफ द फोकल पॉइंट एंड मेनी अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेडियंट. In 2016, Adobe changed Flash name to the Adobe Animate. Adobe ने क्या चेंज कर दिया था, अपना Flash name को Adobe Animate में चेंज कर दिया था. Now, what are the animation methods? An animation is a sequence of frames. The sequence of the frames of frames reproduced at high speed that the human eye is not able to perceive the change. इतने हाई स्पीड पे होता है कि ह्यूमन आई परसीव नहीं कर पाता कि इसमें क्या चेंज हुआ है फ्रॉम वन इमेज टू अनदर वन. यू कैन क्रिएट एनिमेशंस इन टू वेज. आप एनिमेशंस को क्रिएट कर सकते हो किसमें, दो तरीकों से. लाइक फर्स्ट वन इज फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन एंड सेकंड इज ट्विन एनिमेशंस. सो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन क्या होता है, इन दिस मेथड इमेज इज क्रिएटेड इन ईच फ्रेम. हर फ्रेम में इमेज क्रिएट होती है. दैट इज द इनिशियल अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन द फर्स्ट फ्रेम. जो इनिशियल अपीयरेंस होगा है फर्स्ट फ्रेम में है. देन ऑल दोस फ्रेम्स आर मेड व्हिच आर गोइंग टू टेक पार्ट इन इट. तो सारे फ्रेम्स बनते हैं जो कि उसमें पार्ट लेने होते हैं. टू बिग की फ्रेम्स एंड मॉडिफाई देम प्रोग्रेसिवली वन बाय वन. और मॉडिफाई करते हैं प्रोग्रेसिवली एक बाय एक. Now twinned animations. In this we create starting and ending keyframes. हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं starting and ending keyframes to animate the object. क्या करने के लिए, एनिमेट करने के लिए ऑब्जेक्ट को. Now twinning. The series of frames that change incrementally. जो series of frames होता है जो incrementally change होता है और with time to create smooth movement is called twinning. उसको जो टाइम होता है क्रिएट करने का स्मूथ मूवमेंट उसको हम twinning कहते हैं. Creation of motion shape twins using timeline is the basic of Flash. ये क्या होता है, बेसिक्स होता है Flash का. Flash can create three types of twin animation. Flash जो होती है तीन टाइप के twin animations को क्रिएट कर पाती है टाइमलाइन को यूज करके. फर्स्ट वन इज मोशन ट्विन, ट्विन ट्विन एंड शेप ट्विन. मोशन ट्विन क्या है, it is twinning a symbols movement from one position to another. ये twin करता है symbols के movement को एक पोजीशन से दूसरे में. Then text twin uses a motion twin. क्या यूज करता है, मोशन ट्विन को यूज करता है चेंज करने के लिए symbols change over time. You could start with a red object. आप किससे स्टार्ट कर सकते हो, रेड ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हो. सेट द फर्स्ट की फ्रेम टू ऑरेंज. आपको फर्स्ट की फ्रेम को किस पे सेट करना होता है, ऑरेंज पे, और लास्ट वाले को ग्रे पे. एंड योर ऑब्जेक्ट वुड फेड फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रे. जो आपका ऑब्जेक्ट है फिर वो ऑरेंज से ग्रे में फेड हो जाता है. The red color would never appear. Red color कभी भी appear नहीं होगा. But always remember that you can create motion twins only on symbols. आप अपने motion twins को कभी create कर सकते हो, आपको हमेशा याद रखना है खाली symbols पे. So any object upon which you would want to implement motion twins should first be converted into symbol. अगर आपको कोई भी object किसी motion twin में लाना है, पहले उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको आपको सिंबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. Flash source files are in FLF फॉर्मेट. किसमें होते हैं, FLF फॉर्मेट में, जिसमें क्या होता है, ग्राफिक्स होता है एंड एनिमेशंस होती है एज वेल एज एम्बेडेड एसेट्स होते हैं सच एज बिटमैप इमेजेस हो गई, ऑडियो फाइल्स हो गई, FLV वीडियो फाइल्स हो गई. चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर. ये आपके जो ऑब्जेक्ट की शेप होती है वो दूसरे में चेंज कर देता है उसको. इन शेप ट्रेनिंग यू ड्रॉ वेक्टर शेप. शेप ट्रेनिंग में क्या होता है, आप ड्रॉ करते हो वेक्टर शेप एट वन स्पेसिफिक फ्रेम इन द टाइमलाइन and change the shape or draw another shape at another specific frame. और change करते हो आप shape को, draw करते हो shape को किसमें, shape another specific frame में. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a wonderful day.